Hello, my dear students. Let's come to the another part of the surface chemistry, which is known as colloids. I told you earlier as well that surface chemistry basically consists of two parts. One is adsorption and the second is colloids. Now this is the time to discuss about the colloids, as adsorption we have completed. So let's start with the colloids. Before discussing about the colloids and the colloidal solution, I would like to discuss the three types of the solutions which we have discussed in the class 9th. Like you must have observed, you must have discussed in the class 9th, true solution, colloidal and the suspension. Before moving to the colloids, I would like to discuss three of them in brief. ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. दैट मीन्स द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, sugar plus water. If you will dissolve sugar in the water, the particles will get uniformly dissolved in the water. That means the size of the particle is very small, na? That's why the particles gets dissolved. In the suspension, the size of the particle is greater than 1000 nanometer. Means the size of the particle is quite big. For example, you will take mud plus water. If you will add mud into the water, the particles of the mud will be settled at the bottom. That means the size of the particle is quite big that they cannot even dissolve in the water. That's why, being heavier, they will be settled at the bottom. Because the size of the particle is greater than 1000 nanometer. In between these two types of the solution, true solution and the suspension, then in between these two ranges, there is another type of solution which is known as colloidal solution. And the size of the particle is lying between 1 nanometer to 1000 nanometer. In the colloidal solution, the size of the particle is in between 1 nanometer to 1000 nanometer. अब ट्रू सॉल्यूशन में शुगर वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया था. मड प्लस वाटर में मड के पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे बॉटम पे सेटल थे. But in the case of colloidal solution like oil and water, oil ना तो पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व होता है, ना ही ऑयल नीचे सेटल डाउन होता है, but the particles of the oil gets uniformly distributed in the water. Such type of solutions are known as colloidal solution. तो colloidal solution में ना तो particles नीचे सेटल डाउन होंगे, ना पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व होंगे. पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली डिस्पर्स्ड रहेंगे, पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली स्प्रेडेड रहेंगे, पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली घूमते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर. सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज colloidal solution. So in the true solution, the size of the particle is less than 1 nanometer. In the suspension, the size of the particle is greater than 1000 nanometer. In between these two ranges, we have another type which is known as colloidal solution, and the size of the particle is between 1 nanometer to 1000 nanometer. Right? So let us discuss now about the colloids. Colloids is a heterogeneous system. आपको लगेगा ऐसे कि ऑयल तो पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो होमोजीनियस होना चाहिए. बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दो फेज तो नज़र आ रहे हैं ना. वन इज ऑयल एंड द अनदर इज वाटर. सो colloids seems to be homogeneous, but actually it is a heterogeneous system in which one substance is known as dispersed phase and the another substance is known as dispersion medium. आप ये तो जानते हैं कि सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है. वन इज सॉल्यूट एंड द अनदर इज सॉल्वेंट.
तो जो मीडियम होता है जिसमें हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, दैट मीडियम इज नोन एज सॉल्वेंट। जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्शन मीडियम। जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, वन इज डिस्पर्शन मीडियम and the second is dispersed phase. So colloidal solution is a heterogeneous system consisting of dispersed phase and the dispersion medium. सिर्फ colloids में, सस्पेंशन में, ट्रू सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स का। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। कोलॉइडल में इन दोनों के बीच में रेंज में लाई करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सो इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस the particles are continuously spreaded or dispersed in the solvent. Okay, I hope you understand little bit about the colloids. अभी तक सिर्फ सीखा क्या? The one point is colloids are the heterogeneous system कि क्या क्या होता है उसके अंदर? Dispersed phase and the dispersion medium. So colloids basically consisting of the two phases. Okay. Let us now discuss the classification of colloids. मैंने notes में आपको mention किया है कि do this topic from the NCERT only. So we have to go through the NCERT only. First we have the classification of the colloids depending upon their physical state. ये table given है, इस table से 1 नंबर का question surface में से ज़रूर आता है, ठीक है। अब dispersed phase का क्या मतलब है? Solute. Dispersion medium का क्या मतलब है? Solvent. टाइप ऑफ अ कॉलॉइड, सॉल्यूशन कौन से टाइप का है आपको पता है ना। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है। कौन से टाइप का होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। अगर सॉल्वेंट गैशियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी गैशियस स्टेट में होगा। सो द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। So let's move to this table. First देखिए dispersion medium क्या है? Solid. तो colloid भी कौन से टाइप का होगा? Solid sol. ठीक है, और इस solid solvent के अंदर आपने जो solute डाला है that is solid. Solid and solid type of a colloid. Example, some colored glasses. So you yourself have to go through this table. Then I will discuss it with you. First you have to go through its homework part for you. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द colloids डिपेंडिंग अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। माय डियर स्टूडेंट्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। क्या होता है उसके अंदर? एक डिस्पर्शन मीडियम और एक डिस्पर्स्ड फेज। इन दोनों की आपस में इंटरैक्शन कैसी है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में इंटरैक्शन कैसी है, हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज लायोफिलिक colloids and the second is lyophilic colloids. Lyo word stands for solvent. Philic means loving. Solvent loving means अगर मैं solute को, dispersed phase को dispersion medium में डालूं and if both of them are having good interaction then they will form lyophilic colloids. और अगर मैं solvent को अगर मैं solvent के अंदर डालूं and if they are not having good interaction that will be termed as lyophobic colloids. So मेरी जो क्लासिफिकेशन है colloids की वो इंटरैक्शन पे बेस्ड है, किसके बीच में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अच्छी इंटरैक्शन है तो लायोफिलिक, और अगर बेकार इंटरैक्शन है, वीक इंटरैक्शन है, लायोफोबिक। अब लायोफिलिक में समझते हैं क्या मतलब होता है। जो सॉल्वेंट लविंग सॉल्यूट्स हैं, मतलब सॉल्यूट को अगर आपने सॉल्वेंट के अंदर डाला और वो
डालते ही कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दे, उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? लायोफिलिक कोलॉइड्स। जैसे colloidal solutions which are directly formed by just mixing some substances in the suitable dispersion medium, that such type of substances are known as lyophilic colloids. ठीक है, अगर आप गम को पानी के अंदर डालते हो, जैसे ही आपने गम को, जो हम गम यूज़ करते हैं जनरली, या स्टार्च को या रबर को, हमने वाटर, किसी डिस्पर्शन मीडियम लाइक वाटर के अंदर डाला, और अगर वो डिस्पर्शन मीडियम में डालते ही गम चारों तरफ स्प्रेड हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई, मतलब उसने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस को डायरेक्टली डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते ही वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देता है, उन्हें हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। सो द लायोफिलिक कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग सम सब्सटेंसेस like gum, starch, gelatin in a suitable dispersion medium are known as lyophilic colloids. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लायोफिलिक कलॉइड्स की कि ये रिवर्सिबल होते हैं। लायोफिलिक कलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। हाउ कैन आई प्रूव दैट? सपोज करो मैंने पानी के अंदर गम, किसी पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर गम डाल दिया और गम के पार्टिकल्स चारों तरफ डिस्पर्स्ड हो गए। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज रेडी नाउ। अब हमने इवापोरेट कराना शुरू करा दिया वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही वाटर इवापोरेट हो गया, ओनली द पार्टिकल्स ऑफ गम विल बी लेफ्ट। नाउ अगेन रीमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ गम इन अ suitable dispersion medium, again they will again form the colloidal solution. तो अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में? If the dispersion medium is separated from the dispersed phase by the evaporation, अगर आप डिस्पर्शन मीडियम को इवापोरेट करा देते हो डिस्पर्स्ड फेज से बाय द इवापोरेशन, then this colloidal solution can be reconstituted, can be reformed by again mixing it with the dispersion medium. So such type of solutions are known as reversible sols. क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी मच स्टेबल ऑल्सो। वो सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आपको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन कब स्टेबल होता है? अगर उसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहे, दे डोंट गेट सेटल्ड इन द बॉटम। अंडर दैट सिचुएशन दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन विल बी वेरी मच स्टेबलाइज्ड। अगर उसके पार्टिकल्स नीचे प्रेसिपिटेट ना बनाए, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहे, देन सच टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर वेरी मच स्टेबलाइज्ड। ओके, सो दे डोंट गेट कोएगुलेट इजीली। इस टर्म को हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए लायोफिलिक में। 1, दे आर लिक्विड लविंग। सेकेंड, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ सम सब्सटेंसेस like gum, starch, gelatin in a suitable dispersion medium. Second, they are reversible in nature. Dispersion medium can be separated from the dispersed phase by the evaporation, and then this colloidal solution can be reconstituted again by mixing the particles of the gum in the suitable dispersion medium. Third, colloidal solution is very much stabilized. फोर्थ, दे कैन नॉट बी कोएगुलेटेड ईजिली। क्योंकि वो स्टेबल है, पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो उनके प्रेसिपिटेट बनाना आसान नहीं होगा। ओके, नाउ लेट मी कम टू द लायोफोबिक वन। लायोफोबिक में क्या होता है? लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स हिटर। ये सॉल्यूशंस डायरेक्टली नहीं बनाए जा सकते। अगर आप कुछ मेटल्स या मेटल सल्फाइड्स को सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डालते हो और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता, रादर उसके जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज लायोफोबिक कोलॉइड्स।
सपोज करो आपके पास गोल्ड का कोई भी मटेरियल है, या आपके पास कोई सिल्वर की रिंग है, या सिल्वर का कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, या गोल्ड का है। आपने उसको किसी मीडियम में डाला, भले ही वो वाटर हो, अल्कोहल हो, कोई भी मीडियम हो। क्या वो गोल्ड के पार्टिकल्स या वो सिल्वर के पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम के अंदर घूमने लगते हैं? नहीं घूमने लगते। दे विल गेट सेटल डाउन, है ना। दे विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो। तो वी कैन नॉट फॉर्म lyophobic colloids by just mixing the substances like metals and metal sulfides in a suitable dispersion medium. Such type of solutions cannot be formed directly. इनकी आपस में अच्छी इंटरेक्शन नहीं है। लायो solvent phobic hated solute and solvent dispersed phase and dispersion medium are not having good interactions. They cannot be prepared directly. We cannot prepare them directly. So they are prepared by the special methods. Okay? We have different methods for the preparation of lyophobic colloids. I will discuss it later on. तो फिर मान लो मैंने किसी स्पेसिफिक मेथड से बना भी लिया, अब अगर मैं उसमें सेपरेट आउट करना चाहूँ तो क्या मैं वापस से गोल्ड वैसा का वैसा मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो किसी डिफरेंट वे से बनाया है तो इट्स नॉट ईजी टू ऑब्टेन द अगेन गोल्ड। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर सच सॉल्यूशंस अगेन। हेंस लायोफोबिक आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, वंस दे आर प्रेसिपिटेटेड, एक बार प्रेसिपिटेट बन गए तो हम दोबारा से वही कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐड ऑन करके नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, irreversible sols हो गए ये, and they are not very much stable because they are not having good interactions between the dispersed phase and the dispersion medium. Okay, I hope you understood both the types of colloids. Lyophilic में अच्छी interactions होती हैं, substances को डालते ही मीडियम के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार। पानी को इवापोरेट करा दोगे तो गम के पार्टिकल्स बच जाएंगे, उनको वापस से पानी में डाल दोगे तो फिर से कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार। और गुड, दे आर क्वाइट स्टेबल ऑल्सो एंड दे कैन नॉट बी ईजिली कोएगुलेटेड। बट लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अच्छी इंटरेक्शंस नहीं है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द स्पेशल मैथड्स। तो स्पेशल मैथड्स की हेल्प से आप उनको रिवर्सिबली दोबारा वैसे ही प्रिपेयर नहीं कर सकते, एंड दे आर हैविंग वीक इंटरेक्शन बिटवीन द dispersed phase and the dispersion medium. So this is the type of classification of colloids on the basis of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium. Last classification of colloids is classification depending upon the type of the particles. Particles का type कैसा है? कौन से particles? Dispersed phase के particles. बनाना क्या है बच्चों? कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली डिस्पर्स्ड, दे आर कॉन्टिन्यूसली स्प्रेडेड, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन द सॉल्यूशन। ना तो पूरे घुले होने चाहिए, डिजॉल्व होने चाहिए, ना नीचे सेटल डाउन होने चाहिए। In between these two ranges, the particles of the solute must be continuously dispersed in the solvent. So my classification is depending upon the nature of the dispersed phase. First है हमारे पास multi molecular colloids. Multi छोटे छोटे बहुत सारे, molecular colloids. On dissolution, dissolution means dissolve करना। किसको डिसॉल्व करना है? डिस्पर्स्ड फेस को। किस में डिसॉल्व करना है? डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। ऑन डिसॉल्विंग डिस्पर्स्ड फेस इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही छोटा है। तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके एग्रीगेट होकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं जिसका साइज कोलॉइडल रेंज में लाई करता है।
On dissolution means on dissolving the dispersed phase into the dispersion medium, the large number of atoms or the smaller molecules of a substance, किसी भी substance के बहुत सारे particles aggregate together, आपस में combine होते हैं to form a particle, to form a substance which lie in a colloidal range. तो वो छोटे 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 पार्टिकल्स एक ऐसा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जो कि कॉलॉइडल रेंज में लाई करता है. एंड द कॉलॉइडल रेंज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स में क्या होता है बच्चों कि साइज पार्टिकल्स का बहुत छोटा छोटा होता है इस टाइप के सॉल्यूशन में. तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक ऐसा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं which will lie in a colloidal range. एग्जाम्पल क्या है इसका? सल्फर के पार्टिकल्स, ठीक है, thousands of sulfur particles will combine together to form a particle, to form a substance, to form a matter which will lie in a colloidal range. और the gold sol, गोल्ड सोल के भी पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे साइजेस के आपस में कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं which will lie in a colloidal range. Hence, we have discussed the first classification. Here is the next type, that is macromolecular colloids. Macro का means क्या होता है? बड़ा, large. इस टाइप के colloidal solutions में जो particle का size होता है macromolecule का, which already may lie in a colloidal range, means जो macromolecules हैं in a suitable solvent form the solution in which size of the macromolecule may be lying in the colloidal range. Means you don't, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इस टाइप के जो colloids होते हैं, जो macromolecules होते हैं, जैसे macromolecules बड़े बड़े molecules कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये बड़े बड़े molecules हैं. इन बड़े बड़े molecules को जब आप suitable solvent के अंदर डालते हो जिसमें जो साइज है मैक्रोमोलिक्यूल का, जो बड़े पार्टिकल का, वो ऑलरेडी कौन सी रेंज में लाई करता है? कोलॉइडल रेंज. तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कैसे बनेंगे बताओ? मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम इन विच, मतलब जैसे ही आपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डाला, दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन in which size of the particles of the macromolecules may be in the colloidal range. तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है ये कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को जैसे ही हम सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, दे विल फॉर्म द सॉल्यूशन. लेकिन इन टाइप के सॉल्यूशंस में जो मैक्रोमोलिक्यूल हमारा सब्सटेंस है, दैट मे लाई इन द colloidal range. एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, दीज ऑल आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो अभी मैंने आपके साथ जो थर्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी चाहिए वो क्या थी? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस. फर्स्ट क्या था बच्चों? मल्टीमोलिकुलर. मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स कैसे बन रहे थे? बाय इन such type of solutions are prepared in which small number of atoms और molecules, बहुत छोटे छोटे tiny जो atoms है, molecules है, वो छोटे छोटे particles आपस में aggregate होकर एक बड़ा particle बनाते हैं which will lie in a colloidal range. जैसे ही आप dissolve करोगे मल्टी मोलिकुलर colloids को, वो तो बहुत छोटे हैं, तो फिर वो छोटे छोटे particles आपस में combine होकर ना एक बड़ा particle बना देते हैं. वो बड़ा पार्टिकल कौन से रेंज में लाई करता है? कोलॉइडल रेंज. एग्जाम्पल क्या था उसका? सल्फर के पार्टिकल्स और गोल्ड सोल. मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स को जैसे ही हम सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, दैट विल फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बिकॉज दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी लाई इन अ कोलॉइडल रेंज. थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास क्लासिफिकेशन, that is associated colloids. ये भी बिल्कुल मल्टीमोलिकुलर की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पे जो इसमें क्या होता है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं
तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने KCl डाला या सोय सोप डाला तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, टूट जाएगा आयंस में। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करने लगता है, क्योंकि उसमें भी एग्रीगेट बनने शुरू हो जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर लो कंसंट्रेशन पे है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, मगर हायर जैसे कंसंट्रेशन होती चली जाएगी, सो दीज विल कंबाइन, दीज विल एग्रीगेट टू फॉर्म द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ओके, लेकिन ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स है ना, ये तभी बनते हैं जब टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर हो और मिनिमम कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन हो। मतलब जब कंसंट्रेशन बहुत कम है तब तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाते हैं, एक मिनिमम एक ऐसी कंसंट्रेशन आ जाती है जिसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके एक ऐसी रेंज में आ जाते हैं कि दैट दे विल लाई इन अ कोलॉइडल रेंज, such type of colloids are known as associated colloids. एक मिनिमम टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है कि जिसमें ये पॉसिबल हो। दैट मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड द मिनिमम कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द क्लासिफिकेशंस। 3 हमने डिस्कस की। फर्स्ट, नेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, दैट मीन्स दैट टेबल आप खुद से एक बार डिस्कस करिए। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। थर्ड क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, मल्टी molecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids. So just go through these classifications, then we'll discuss it later.